أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کورس 1 ہے، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے، یعنی یہ قرآن کورس کا وہ پہلا لیول ہے، پہلا مرحلہ ہے جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں اور آسان طریقے سے سیکھتے ہیں۔ ابھی آج چونکہ پہلی کلاس ہے تو ہم زیادہ وقت انٹروڈکشن بتائیں گے آپ کو اس کلاس کے بارے میں، اس کورس کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہم سبق بھی پڑھیں گے آج کی کلاس میں انشاءاللہ۔ تو یہ 1A ہے، یعنی جس میں ہم نے آپ کو اس کورس کا تعارف بھی دینا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑا سا سبق بھی پڑھائیں گے 1A میں۔ پھر 1B والا پورشن ہوگا، اس میں ہم آپ کو گرامر تھوڑی سی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ سب نے اپنے فی الحال مائک آف رکھنے ہیں، لیکن کیمرہ نہیں آف کرنا، کیمرہ سب کا آن ہونا چاہیے۔ جیسے الکریم والے ہیں، ان کا کیمرہ بند ہے، کیمرہ پلیز آن کر لیں۔ چلیں جی، تعارف اس کورس کا۔ یہ کورس ڈیزائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے۔ ڈاکٹر صاحب PCTV کے فاؤنڈر بھی ہیں اور آج کل وہ سعودیہ میں دمام یونیورسٹی میں ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں۔ انجینئر ہیں اپنے پروفیشن کے لحاظ سے، لیکن قرآن کو سمجھنا سیکھنا انہوں نے اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنایا ہے کہ وہ اب اس کو اس طرح سے پھیلا رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ان کے ڈیزائن کیے ہوئے یہ کورسز جو ہیں پھیل چکے ہیں، مختلف لوگوں پہ مختلف لوگ پڑھاتے بھی ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے لیے بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے کہ انہوں نے اتنا اچھا کورس اتنے آسان طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم شخصیت ہیں آپ تک یہ کورس پہنچانے کے لیے سر ارشد اقبال ملک۔ پاکستان میں یہ کورسز جو ہیں نا، یہ ارشد اقبال ملک صاحب نے متعارف کروائے تھے۔ خود ارشد صاحب بھی انجینئر ہیں اور وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ یہ ان کا پروفائل آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیں، ہائیلی پروفائل لوگ ہیں نا، ماشاءاللہ۔ دنیا کی تعلیم بھی خوب حاصل کی ہے دونوں نے، اور اب اپنی زندگیاں اپنا آپ جو ہے انہوں نے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، قرآن کو پھیلانے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ارشد اقبال ملک صاحب نے پاکستان میں یہ کورسز شروع کروائے اور اب پاکستان کے بھی ذریعے آن لائن پڑھا کر دنیا ساری میں یہ کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ اور آپ تک یہ کورس کیسے آیا ہے؟ آپ کے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں کس طرح آیا؟ کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن اور الفلاح منزل ٹرسٹ لاہور کے تحت آیا ہے آپ کے پاس۔ تو آپ کو معلوم ہے کاوش والے، ان کے مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے شہروں میں بھی چل رہے ہیں، کہ وہ چاہے صحت کا ہے، تعلیم کا ہے، لوگوں کی، غریب لوگوں کی امداد سے متعلق ہے، مصیبت زدگان جیسے سیلاب زدگان ہوتے ہیں ان کی مدد سے ریلیونٹ ہو تو بھی کاوش والے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اور آپ بھی جہاں اب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جن اداروں میں، وہ ادارے کاوش کے تحت چل رہے ہیں، تو کاوش والوں ہی کا یہ پلان تھا کہ یہ کورسز آپ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کروائے جائیں، جہاں پہ وہ اور بھی بہت سارے کورسز کروا رہے ہیں۔ تو اس میں اس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ آج ہم اپنا تیسرا بیچ قرآن کورس 1 کا شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ پچھلے سال ہم نے 2 بیچ پڑھائے اور اب اس سال یہ ہمارا پہلا بیچ ہے، تو یہ تیسرا بیچ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب کچھ میرا تعارف، میں کون ہوں؟ میرا نام ہے بنت ولی۔ میں آپ کو یہ کورس انشاءاللہ آن لائن ہر جمعہ کے دن پڑھایا کروں گی۔ میں خود بھی ایک ادارے میں جاب کر رہی ہوں، لیکن اصل میں میرا تعارف یہ ہے کہ میں
قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، قرآن کی ٹیچر ہوں. میں نے بھی الفلاح منزل سے 2022 میں پہلا کورس کیا تھا، پھر میں نے الفلاح منزل جوائن کر لی اس لحاظ سے کہ میں بھی آن لائن کورسز پڑھاؤں، اور میں 2023 سے اب تک کورسز پڑھا رہی ہوں، قرآن کورس 1 2 اور 3. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا، اور میری دعا بھی ہے، مجھے امید بھی ہے کہ آپ بھی سارے یہ جو سامنے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب میں سے بھی وہ سٹوڈنٹس آئیں گے سامنے، بلکہ آپ سب پڑھائیں گے، سکھائیں گے، جس کو جیسے آسانی ہو. اپنے گھر میں کسی کو سکھا سکتے ہیں، جو آپ یہاں سیکھیں وہ گھر میں کسی کو سکھا دیں. اگر کسی کے پاس تو وہ باقاعدہ جیسے میں آپ کو آن لائن پڑھا رہی ہوں، آپ آن لائن پڑھائیں، ہم سے سیکھیں، آگے آن لائن پڑھانا شروع کر دیں. اور اگر آن لائن کے لیے بھی ممکن نہیں ہے تو میں تو یہی چاہوں گی کہ آپ اتنا اچھا سیکھ لیں ہم سے اس میں، کہ آپ اپنے اداروں میں آن لائن کی بجائے اپنے اپنے سینٹر میں خود یہ کورس کروایا کریں. تو ہم بھی اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے یہ کام اسی لیے شروع کیا تھا کہ قرآن جتنا ہم سے پھیل سکے پھیلے. الفلاح منزل ٹرسٹ ہے کیا؟ الفلاح منزل ٹرسٹ کا اصل کام جو ہے، اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی پہلے تربیت کی جائے، قرآن کو سمجھا کر، قرآن کو سکھا کر، پھر وہ لوگ جو عمل کے تحت ایک جیسے ذہن کے ہو جاتے ہیں، ان کو قرآن کی سمجھ ہوتی ہے، وہ قرآن پہ عمل کرنا بھی اور قرآن کو پھیلانا بھی اور قرآن کا نظام نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ سب مل کر ایسا معاشرہ بنائیں جہاں پہ زندگی اسلام کے مطابق ہو ہر لحاظ سے. تو آپ بھی جو سیکھ رہی ہیں آپ اس کا حصہ ہیں. آپ نے جو سیکھنا ہے اسے اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے، تاکہ معاشرے میں نا قرآن کا سسٹم چل جائے. یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد کی ہے. یہ یاد رکھیں، الفلاح منزل ٹرسٹ کا ہیڈ آفس جو ہے، مرکزی دفتر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، جو ارشد اقبال ملک صاحب چلا رہے ہیں. بڑی مزے کی بلڈنگ ہے، جب آپ یہاں جائیں گے نا آپ کو بہت سکون ہوگا، بہت مزہ آئے گا. ہم ٹیچر بننے کے لیے نا ٹریننگ یہاں سے جا کر لیتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے جب ہمیں دن رات ہر وقت وہاں پہ ایک خاص ماحول، پرامن پرسکون، بڑا خوبصورت روحانی ماحول ملتا ہے. ہم وہاں پہ قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن کے کورسز سکھانے کے لیے ٹریننگ لیتے ہیں اور پھر آ کر دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ایسا ادارہ ہے. لیکن لوگوں کی محنت ہے، لوگوں کی کوشش ہے، آپ جیسے لوگوں کی محنت سے، آپ جیسے لوگوں کی مدد سے پھر دیکھیں یہ کام اتنا پھیلا کہ یہ اور بھی بہت سی جگہوں پہ اس طرح کے ادارے الفلاح کے تحت بن گئے ہیں. جیسے یہ کراچی کی بلڈنگ ہے آپ کے سامنے، کراچی میں بھی یہ سینٹر کھل گیا ہے. اسلام آباد میں بھی ہیڈ آفس کے علاوہ 2 3 مختلف جگہوں پہ اور بھی ہیں، سرگودا میں ہے، پشاور میں ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اب پچھلے سال سے الفلاح منزل ٹرسٹ کا ایک آفس لاہور میں بھی کھل چکا ہے، کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت. تو لاہور میں بھی اس کا آفس ہے. اب آپ جو کورس کر رہی ہیں الفلاح منزل لاہور کے تحت کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن کی زیر سرپرستی کر رہی ہیں. اب آپ کا بھی تعارف ہو جائے، میں نے اپنا تعارف تو کتنی دیر کروایا نا. آپ کون کون ہے یہاں پہ؟ الکریم کمپلیکس ہے، الرحیم کمپلیکس ہے، الرحمان کمپلیکس ہے، الکریم 2 دفعہ ہے، اچھا النافع ہے، الشکور کمپلیکس ہے، دورانی کمپلیکس نہیں نظر آ رہا. اچھا آپ نا مجھے بس کوئکلی اتنا بتائیں کیونکہ اسٹوڈنٹس تو اچھا ٹھیک ہے، دورانی کمپلیکس بھی موجود ہے. تو ذرا مجھے جلدی سے آپ نے صرف اتنا بتانا ہے ابھی سب نے کہ کون سا سینٹر کس شہر سے ہے. سب سے پہلے الکریم کمپلیکس آپ کس شہر میں ہیں؟ بہاری مجھے آواز نہیں آئی. الکریم کمپلیکس بہاڑی بہاڑی میں.
ठीक है, अल करीम कॉम्प्लेक्स बिहाड़ी से मौजूद है। अल रहीम कॉम्प्लेक्स कहाँ से है? अल रहीम कॉम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये 5 सेंटर बहावल नगर से हैं। अल रहीम, अल रहमान, अल नाफे, दुरानी, अल शकूर। बहावल नगर से। अच्छा, जी जी। ਇੱਥੋਂ दूसरे ਬੰਦ शहरों ਕਰ से ਦੇ कौन से? ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਐਵੇਂ दूसरे शहरों ਉਹ से ਤੇ कौन ਕੱਲ से ਤੋਂ हैं? ਇੱਥੇ बस अल करीम ही है। 6 सेंटर ਹਿੱਲੇਗਾ है ना, बस बाहर ਤੇ से अल ਤੁਹਾਡੀ करीम ਆਵਾਜ਼ ही है। ਜਾਏਗੀ अच्छा, ਮੈਂ ਜਦੋਂ चले ठीक है, सिस्टर अनम ने बता दिया कि 5 सेंटर्स तो बहावल नगर से ही हैं। ठीक है, तो आप असल में, आपके जहन में क्या था जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया? आपका जी चाह रहा था ना कि आप कुरान समझें, कुरान पढ़ें, इसलिए आपने ये कोर्स ज्वाइन किया। तो यहाँ पे आपने आज ही ये नीयत करनी है कि हम यहाँ पे कुरान सीख के जाएं, समझ के जाएं, जो इस कोर्स में पढ़ाया जाए। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ा दे, जिसने आपको हिम्मत दी, आपको तौफीक दी, आपने नीयत की, आपने ख्वाहिश की और आपने अमल करके दिखा दिया कि आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा और भी बहुत से लोग शामिल हैं। मैं तो आपके सामने हूं ना, ये पीछे बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत से नाम हैं जो इस सारे कार्य खैर में शामिल हैं, हमारी मदद करते हैं, बाकायदा इंतजामात करते हैं और आप तक ये कोर्स पहुंचाते हैं। तो आपकी दुआओं के सबसे ज्यादा हकदार तो वो लोग हैं जो सामने भी नहीं आते और आप तक ये कोर्स जिस कदर आसानी हो सके, जिस कदर बेहतर इंतजाम हो सके, उसके लिए कोशिशें करके आप तक पहुंचाते हैं। आप सबको बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप अल्लाह ताला की किताब सीख रही हैं। ये बड़ा बाबरकत मौका है। एक तो आज मुबारक दिन है, जुमा का दिन है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। तो अल्लाह की ये भी बहुत बड़ी कोई मसलहत और हिकमत और आपके ऊपर बड़ा फजल और नेमत है कि उसने इतने मुबारक महीने में, मुबारक दिन से, मुबारक घड़ियों में आपसे कुरान को समझने और सीखने का ये काम लेना शुरू किया है। तो अल्लाह ताला से बहुत दुआ करें अपने लिए कि अल्लाह ताला सारे कोर्स में आपके लिए, मेरे लिए बहुत आसानियां करे और हम जो सीखें उस पे अमल करें, जो हम सीखें उसके हम आगे भी फैलाएं और जो हम सीखें और अमल करें और फैलाएं अल्लाह ताला उसे कबूल भी करें। कोर्स के मुतालिक कुछ अहम हिदायत वो क्या हैं कि आप सवाल पूछा करेंगे, आपने बिल्कुल झिझकना नहीं है। जब हम पढ़ा रहे हो, आपको आपके जहन में कोई सवाल आए, आप नोट कर लें, जहन में रख लें। क्लास के ख़त्म होने पे हम 5 से 10 मिनट दिया करते हैं, आप उसमें अपने सवाल पूछें, आपको जवाब दिए जाएंगे। दूसरी एक अहम बात है कि आप इस क्लास में इस वक्त तो किस लिहाज से, किस हैसियत से बैठे हुए हैं? एक तालिब इल्म की हैसियत से या उस्ताद की हैसियत से? क्या ख्याल है आपका, किस हैसियत से हैं? बताएं, सब मिलके बताएं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। तालिब इल्म के। अच्छा, आप उस्ताद तालिब इल्म की हैसियत से हैं, तो आपका जी चाहते है कि आप भी उस्ताद की हैसियत से बैठें? जी चाहता है ना? देखें, बड़ा यस। हम कह रहे हैं कुरान सीखें आसान तरीके से, इसका मतलब है ये काम आसान है, आप इंशाल्लाह आसानी से सीख लेंगे। आप यकीन करें, मैंने भी आसानी से ही सीखा है। फिर आगे अगर आप हिम्मत करें ना, नियत करें, तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा करते हैं। फिर मेरे लिए भी आसानियां हुई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कुरान सिखाऊंगी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तीसरा साल है मैं कुरान के ये कोर्सेज पढ़ा रही हूँ। तो कभी कभी अब भी यकीन नहीं आता क्या मैं वाकई ये काम कर रही हूँ। तो आप अपने जहन में ये बात रखें कि आपने तालिब इल्म वाले हैसियत से उस्ताद वाली हैसियत में आना है। जरूरी नहीं है कि उस्ताद बनने के लिए आप कहीं नुमाया जगह पे ही आए, आपको बहुत सारे इंतजामात करने पड़े, बहुत सारे चीजें बनानी पड़े। बस सिर्फ ये है कि जो आपको मिलता है, जिसके लिए, जिस तक पहुंचाना आपके लिए आसानी है, आप उस तक ये जो सीख रहे हैं इसे सिखाना शुरू कर दें। घर में, मोहल्ले में, अपने सेंटर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में,
तो आसानियां ही आसानियां इंशाल्लाह होती जाएंगी, और आप स्टूडेंट की हैसियत से ही नहीं बल्कि टीचर की हैसियत से भी कुरान को समझेंगे भी और समझाएंगे भी, सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो कोर्स है ना, ये तफसीर का कोर्स नहीं है। इतना वक्त नहीं हुआ करेगा कि हम तफसीर बयान करें, ठीक है? 1 घंटे की, सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, तो तफसीर नहीं पढ़ाई जाएगी। ये तजवीद का कोर्स भी नहीं है, तजवीद के अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं। और ये नाजरा का कोर्स भी नहीं है, नाजरा के लिए भी आप कोई और कोर्सेज और अलग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फिका का कोर्स भी नहीं है। होता है ना, स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि अच्छा कुरान की बात है तो हम जरा अपने मसाइल मसले पूछ लें, और ज्यादा तफसील से कुरान को सीख लें। नहीं, ये उस तरह का भी कोर्स नहीं है। इसमें फिका भी नहीं सिखाई जाती, और ना ही वो वाले मसाइल डिस्कस होते हैं। बल्कि ये तर्जुमा का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा का, लफ्जी तर्जुमा, ठीक है? हम नमाज के जरिए, इसका नाम इसीलिए है कि इसमें नमाज का सबक सिखाया जाता है। जुबानी तो नाजरा उसका आपको आता ही है, आप नाजरा भी पढ़ सकते हैं, हिफ्स भी आपको है नमाज का सबक। बस ये कि नमाज के सबक में जो लफ्ज हैं उनके मैनी क्या हैं वो हम इस कोर्स में सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि हम सिर्फ नमाज के सबक का तर्जुमा सीख कर कुरान करीम के 50% लफ्ज सीख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है कि ये तो मोबाइल खैर बंद, लेकिन मोबाइल बंद से मुझे ये याद आया कि आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे इस वक्त यहाँ सेंटर्स की जो इंस्ट्रक्टर बैठी हुई हैं वो जहन में ज़रूर रखें। क्लास आपने हमेशा 11 बजे से 10 मिनट पहले ज्वाइन करनी है। आपकी क्लास 11 बजे हुआ करेगी इंशाल्लाह। आपको क्लास का लिंक 10:30 बजे मिल जाया करेगा, और आपने क्लास 10 मिनट पहले लाजमी ज्वाइन करनी है। तीसरी अहम बात क्लास के दौरान की, कि आपके कैमरा कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, अपने कैमरा ऑन रखा करें, ठीक है? सेंटर्स को कह रही हूँ, सेंटर्स ने अपने कैमरा हमेशा ऑन रखने हैं। और दूसरी अहम बात ये कि आपने इस कोर्स की दावत ना, जैसे अभी तो आपका बैच शुरू हो गया है आपके वीटीसी में, अगले वीटीसी के बैचेस के लिए आपने दूसरे लोगों को दावत देनी है, अपनी सहेलियों को, अपनी मोहल्लेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, जहाँ जहाँ लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां हैं, खवातीन हैं जो पढ़ सकती हैं, समझ सकती हैं, आप उनको दावत दें और उन्हें बताएं कि हमारा जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, अल करीम सेंटर, नाफे, दुर्रानी, रहीम, रहमान, शकूर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कुरान को भी समझने का एक कोर्स करवाया जाता है। तो आप अपने घर में खवातीन को, लड़कियों को इस कोर्स के लिए भेजें, आप दूसरों को दावत दें। आप यकीन करें, जब आप दूसरों को दावत देंगे, वो जो सीखेंगे वो आगे सिखाएंगे, वो जब तक वो चीज़, वो सिलसिला चलता रहेगा, उसका अजर आपको भी मिलता रहेगा, चाहे हम इस दुनिया में मौजूद ना भी हों, फिर भी हमें उसका अजर मिलता रहेगा। और फिर तो क्या ही अच्छा हो कि अगर आप लोगों में से ये सुनकर फिर ट्रेनिंग लेके कोई टीचर बन जाए, और आपकी दावत पे कोई और लोग आगे टीचर बन जाएं, कुरान सिखाना शुरू कर दें, तो वो जब तक वो सिलसिला चलता रहेगा आपको कितना अजर मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसलिए इस कोर्स की दूसरों को जरूर दावत दें। अब हम ये देखते हैं, हम कुरान का तर्जुमा सीखना क्यों चाहते हैं, हम आपको क्यों कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे लफ्जी तर्जुमा सिखाना है, क्यों जरूरी है कुरान को समझना। एक छोटी सी मिसाल है। अगर आपकी क्लास है ना, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के शहरों में हैं, आप मेरी जुबान समझती हैं, मैं आपकी जुबान समझती हूँ, तो ये लेक्चर हो रहा है। अगर मैं ये सारा लेक्चर इंग्लिश में देना शुरू कर दूं, अगर आप मुझे जवाब सराई की जुबान में देना शुरू कर दें, मुझे, आपको एक दूसरे की समझ आएगी? नहीं आएगी ना। फायदा फिर कोर्स करवाने का, लेक्चर कर देने का। अगर हमें कोई फ्रांसीसी जुबान में लेक्चर दे, हमें कुछ समझ आएगी? चाहे वो लेक्चर बहुत अच्छा हो, जिंदगी बदल देने वाला हो, लेकिन मेरे तो किसी काम का नहीं ना, क्योंकि मुझे फ्रांसीसी जुबान नहीं आती। तो जरा रुक के सोचें
हम जो नमाज में इमाम से सबक सुनते हैं, कुरान की तिलावत सुनते हैं, या हम खुद जब नमाज पढ़ते हैं तो वो जो हम नमाज में सबक पढ़ते हैं वो अरबी में है। अरबी मुझे और आपको अगर नहीं आती तो ये लेक्चर वैसे मिल किसकी तरफ से रहा है? अल्लाह की तरफ से। इमाम हमें सुना रहे हैं। मगर हमारी कितनी बदनसीबी है कि हम बचपन से ये लेक्चर रोज सुनते हैं मगर हमें समझ नहीं आता। हमें नहीं पता कि हमें अल्लाह क्या कह रहे हैं। इस लेक्चर में अल्लाह ने इमाम के जरिए हमें क्या सुनाया है। तो ये है ना बदनसीबी। हम अपनी कोई डिग्री तो इस तरह नहीं लेंगे, तो हम कुरान के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? तो आज यूं समझ लें कि आपकी जिंदगी का एक ऐसा अहम दिन है कि अच्छा, 1 मिनट जरा आपको जरा वेट कीजिएगा। मैं बात करना शुरू कर देती अच्छा, तो अब यूं समझ लें कि मेरा और आपका वो सफर शुरू हुआ है कि पहले हम मुसलमान थे इत्तफाकिया। हमें अल्लाह ने मुसलमान घराने में पैदा कर दिया तो हम मुसलमान हैं। अब हमने क्या करना है? इत्तफाकिया मुसलमान से हमने खुद अपने इख्तियार इंतखाब की बुनियाद पे मुसलमान बनना है। खुद सोचकर खुद समझकर ईमान लाना है, कलमा पढ़ना है कि हमने अपने दीन को, अपने कुरान को समझना है। हम मुस्लिम बाई चांस नहीं होंगे, हम मुस्लिम बाई चॉइस होंगे। ठीक है। लेकिन जब ये बात, आप, ये बहुत बड़ा फैसला है जो आप करने लगे हैं कि मैंने गौर और फिक्र और तवज्जो के साथ अपने दिल के ईमान के साथ मुसलमान होना है। सिर्फ इसलिए मुसलमान नहीं होना कि मैं मुसलमानों के घर में पैदा हुई हूँ। जब इतना बड़ा फैसला आप करेंगे ना, तो आपके आसपास कोई है जिसे ये बात सुनकर बहुत तकलीफ होगी और वो बहुत कोशिश करेगा आपको इस रास्ते से हटाने की कि छोड़ो, अरबी को सीख के क्या करना है, तुम्हें कहाँ समझ आएगी, कुरान के तो 30 पारे हैं, इतना सारा सबक है, कैसे समझोगे, कैसे करोगे। नहीं, आपने उसकी वसवसों में नहीं आना। वो कौन है आपको पता है। आप अपने उस दुश्मन दुश्मन को पहचाने कि उसको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि ये दुनिया के इतने जो मुसलमान हैं ये सोच समझ के गौर व फिक्र के साथ मुसलमान हूँ। तो हमने उनकी बातों में उस उसको पहचानना है और उसके इस सारे चक्कर में नहीं आना। ठीक है। अब क्या है अगली बात? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कुरान का क्या मोजज़ा है, हम्म, आपको क्या लगता है कुरान का क्या मोजज़ा होगा? सबसे बड़ा मोजज़ा आपको क्या लगता है? यकीनन आप में से कोई कहेगा कि कुरान सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला है। हाँ, ये मोजज़ा है कुरान का। कुरान के हाफिज, दुनिया में किसी किताब को इस तरह जुबानी नहीं याद किया जाता, कुरान को जुबानी याद किया जाता है। और ये कि और बहुत सी बातें जो कुरान के मोजज़ात में शामिल है। लेकिन पता है कुरान का सबसे बड़ा मोजज़ा ये है कि ये इंसान में तब्दीली लेके आता है। अगर किसी को समझ आ जाए, अगर कोई दिल के जज्बे और शौक के साथ इसे पढ़े, तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। चोर डाकू जो है वो इंतहाई मोमिन बन जाता है। अरब के जो बद्दू हैं वो कैसे कैसे शाहकार और अच्छे नेक इंसान बन जाते हैं। मुआशरे का मुआशरा बदल जाता है। तो ये खूबी है कुरान की। हमारे में ये तब्दीली क्यों नहीं आती? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मुसलमान हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से कुरान पढ़ रहे हैं। हमारे में वो खास तब्दीली क्यों नहीं आती? इसलिए कि हमें कुरान समझ नहीं आता।
تو آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے بدلنے کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی پہلے کیا تھے اور بعد میں قرآن کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کے بعد کیا سے کیا بن گئے، تو ہم نے خود کو اس تبدیلی کے مطابق ڈھالنا ہے کہ ہم میں بھی وہ تبدیلی آئے، ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اب یہ بات کہ قرآن تو بہت لمبا ہے اور کسی اور زبان میں ہے تو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، یہ سیکھنے کا معاملہ ہے اور قرآن سیکھنے میں آسان ہے، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بالکل یہ بات نہیں سوچنی کہ یہ ہماری زبان میں نہیں ہے تو قرآن کو سمجھنا، اس کی اردو سمجھ لینا بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ قرآن کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ نصیحت انسان کب حاصل کر سکتا ہے کسی کی؟ جب اسے وہ بات سمجھ آئے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے کہ ہم اسے سیکھ نہ سکیں، اسے ہم سمجھ نہ سکیں، یہ بہت آسان کام ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں نیکسٹ ٹائم، آپ نے نہ یہ بات نہیں کہنی کہ یہ مشکل ہے، مشکل بالکل نہیں، یہ بالکل غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے کہ ہم اسے مشکل سمجھیں۔ اب جب ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ آسان ہے تو یہ آسان ہے، اور جب ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ قرآن بہت مشکل ہے، قرآن تو ہماری زبان میں نہیں ہے، اس کو تو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، نہیں، آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، شیطان ہماری زبان سے یہ لفظ نکلواتا ہے کہ قرآن مشکل ہے۔ آپ نے ایسا سوچنا بھی نہیں ہے، آپ نے ایسا کہنا بھی نہیں ہے کہ قرآن مشکل ہے، نو۔ اللہ نے کہہ دیا قرآن آسان ہے تو اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، ہم اللہ کی بات کو، قرآن کی بات کو جھٹلانے والے نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور خاص بات، ہم یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس کورس کے بعد ایسے نہیں ہوگا کہ آپ فر عربی بولنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم عربی زبان بولنا نہیں سیکھ رہے، ہم قرآن کو سمجھنا سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اسی لیے، چونکہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، عربی زبان بولنے کا فی الحال ہمارا کوئی وہ ٹاسک نہیں ہے، تو چونکہ قرآن کو سمجھنا ہے اس لیے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں یہ والے کورسز۔ آپ پہلا کورس کر رہے ہیں نا، اس کے بعد ایک کورس ہوتا ہے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، ساتویں لیول پہ جا کے پورا قرآن مکمل ہوتا ہے ترجمہ میں۔ تو جو پہلا لیول ہے نا، جو آپ آج سن رہے ہیں، آج سے شروع کریں، اسے کہتے ہیں قرآن کورس 1، اور اس میں ہوتا ہے نماز کا سبق، یعنی ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، اور اس لیے نماز سے شروع کرتے ہیں کہ ہم روز تقریباً 1 گھنٹہ نماز اور دعاؤں کے اسی ماحول میں رہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو نماز کا سبق زبانی یاد ہے، تو جو چیز زبانی یاد ہوتی ہے نا، اس کا معنی سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے الحمدللہ پہلی بات تو یہ کہ بہت آسانی ہوگی۔ دوسری یہ بات کہ جب آپ زبان سیکھ رہے ہو نا، تو زبان سیکھنے کے لیے آپ کو وہ زبان سننی بھی پڑتی ہے، آپ کو پڑھنی بھی پڑے گی، آپ کو بولنی بھی پڑے گی، آپ کو لکھنی بھی پڑے گی۔ پھر اس صورت میں تو ہم آپ کو شاید روز اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی بھی کلاس پڑھائیں تو کم ہے، لیکن ہم زبان نہیں سیکھ رہے، ہم فی الحال عربی زبان بولنا نہیں سیکھ رہے، ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن فہمی، ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس میں ابھی آپ نے صرف 2 ہی کام کرنے ہیں، ایک مجھ سے سننا، دوسرا خود پڑھنا۔ جو آپ نے سن لیا ہوگا بعد میں وہ آپ خود پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کیا ہوگا، آپ کو قرآن آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، دماغ پر بوجھ بھی کم پڑے گا، آپ کو کام بھی کم کرنا پڑے گا، اور سبق آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن سمجھنا آسان ہے۔ اچھا، تیسری بات کیا کہ ہم عربی زبان نہیں سیکھ رہے، ہم قرآن کو سمجھنا سیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اس کورس میں نا ہم لکھاتے، پڑھاتے، سناتے، بلاتے، اتنے سارے لمبے لمبے کام نہیں کرواتے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں نماز کا، وہ ایک ایک لفظ کے معنی پہ زیادہ زور ہو، آپ کو ہر اس لفظ کا معنی سکھا دیا جائے۔ اور یہ بڑا فطری طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، جیسے بچے سیکھتے ہیں ویسے ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بچے بن کر سیکھنا ہے۔
आप खुद सोचें, जब कोई बहुत छोटा बच्चा होता है, पहले नया नया बोलना शुरू करता है, तो क्या उसे कोई ये बात इतनी तफसील से सिखाता है कि जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुमने ये जुमला बोलना है, जब तुम्हारा जी चाहेगा पानी पीने को तो तुमने ये कहना है? या फिर आप उसे ग्रामर पढ़ाते हैं? ग्रामर सिखाते हैं ना हम बच्चे को? नहीं सिखाते ना। हम उसे ये नहीं कहते कि तुम्हें जब भूख लगेगी तो तुमने मुझे ये कहना है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दें। नहीं, बच्चा तो खुद ही आपसे सुन सुन के छोटे छोटे लफ्ज बोलना शुरू हो जाते हैं। उसे लफ्जों का मैनी समझ आता है ना, तो वो लफ्ज बोलना शुरू हो जाता है। जैसे वो कहता है खाना, रोटी, तो घर वाले समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी है, इसने कुछ खाना है। उसे प्यास लगती है तो वो अपनी जुबान में टूटे फूटे लफ्जों में कहता है पानी। मम, हाँ, ऐसे लफ्ज बोलता है। उसे कोई सिखाता तो नहीं है ना, वो खुद सीख जाता है। ऐसे ही आपने भी सीखना है, छोटे छोटे लफ्जों से एक एक लफ्ज का मैनी सीखना है। कोई तफसील के लंबे लंबे उसूल नहीं सीखने। तो कुरान समझने के लिए जरूरी भी यही है कि हम पहले लफ्ज पकड़ें, लफ्जों को सीखें। अच्छा, ये अभी जो आपको नजर आ रहा है ना, ये कुरान पाक का नुस्खा है जो आमतौर पे हमारे घरों में होता है, और हाफिज ज्यादातर ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं हाफजी मदनी मुसहफ। ठीक है, ये उसकी एक तस्वीर है, उसके 2 सफ़ों की। पहले पारे के दूसरे नंबर पे आने वाले 2 सफ़े। अभी ये जो आपके सामने है ना, आप सबको पता है कि आप सबको, मुझे इसका नाजरा आता है। हम पढ़ लेंगे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम, एंड सो ऑन, ये एंड तक, इन कुंतुम सादिकीन, सफा का एंड। ठीक है, नाजरा आपको भी आता है, मुझे भी आता है, लेकिन इसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है आपको पता है? कि अल्लाह का खत है, आपके नाम पे, मेरे नाम पे। ये अल्लाह की बात है, ये अल्लाह के लफ्ज है। लेकिन मुझे और आपको पता नहीं कि इसका मैनी क्या है। तो अभी नाजरा तो आप जानते हैं, लेकिन मैनी आपको नहीं मालूम। लेकिन इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स मुकम्मल कर लेंगी ना, तो कुरान की इन्हीं सफ़ात के, ये देखें, आपको इतने मैनी आते होंगे। ये जिन मैनी को पीले रंग से निशान लगाया हुआ है ना, ये सारे अल्फाज के मैनी आपको आते होंगे इंशाल्लाह। है ना मजे की बात? सिर्फ 20 घंटे का कोर्स, यानी तकरीबन 20 क्लासें आप पढ़ेंगे, और आपको कुरान के इतने सारे अल्फाज के मैनी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर देखें आप कुरान के, असल में ये जो मैंने आपको हाफसी मदनी मुसहफ दिखाया ना, इसके सफ़े होते हैं 600 सफ़े, और हर सफ़े पे 15 लाइनें होती हैं। ये देखें, अगर घर जाके भी खोल के देखेंगी ना, तो ये आप देखेंगे 15 लाइनों वाले कुरान के 600 सफ़े होते हैं। और ये जो लाइंस है ना, इस एक सफ़े पे 15 है। हर लाइन में 9 लफ्ज होते हैं, तकरीबन 9 लफ्ज होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला ना, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, तकरीबन 9 लफ्ज बनते हैं। हर लाइन में तकरीबन 9 लफ्ज होते हैं, एक आधा ज्यादा हो सकता है, एक आधा कम भी हो सकता है समटाइम्स। और इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हर सफ़े पे 15 लाइंस हैं, और उसमें हर लाइन में 9 लफ्ज हैं, तो ये पता है हर सफ़े पे 130 लफ्ज बनते हैं। 9 को 15 से ज़रब दे दें, यानी हर सफ़े के 130 लफ्ज हैं जो आपने सीखने हैं। और 130 लफ्ज के लिहाज से अगर आप हिसाब लगाएं, 130 अल्फाज को ज़बर दें 600 से, तो ये बनते हैं 78,000। आपने कुरान के 78,000 लफ्ज सीखने हैं, 78,000। थोड़ी देर आपको परेशानी होगी कि ये तो बहुत ज्यादा लफ्ज हैं, मैं कुरान को सीखना शुरू करूं तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, 78,000 लफ्ज मैं कैसे सीखूंगा, कब जाके ये काम खत्म होगा। थोड़ा सा आपको लगेगा मुश्किल है, लेकिन नहीं, मुश्किल तो है ही नहीं है। अभी सोचें, कैसे मुश्किल नहीं है? आपने 78,000 लफ्ज नहीं सीखने,
क्यों? इसलिए कि कुरान में बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो 2 या 3 या 4 दफा भी इस्तेमाल हुए हैं, या इससे ज्यादा दफा भी इस्तेमाल हुए हैं। कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो सैकड़ों दफा भी आए हैं। लफ्ज एक ही है, अल्लाह का मैं लफ्ज, ठीक है। मुस्लिमून का लफ्ज वो कितनी दफा आया है कुरान में। तो अगर हम उन अल्फाज को निकाल दें जो बार बार आए हैं, तो कुरान के लफ्ज बनते हैं 17,000। यानी मुस्लिमून का तर्जुमा अगर एक दफा आप सीख लें, तो आपको हर बार तो नहीं सीखना पड़ेगा। अगर मुस्लिमून का लफ्ज कुरान में 150 दफा आया है, तो क्या आप 150 दफा मुस्लिमून का मतलब सीखेंगे? नहीं, आपको तो एक ही दफा सीखना हुआ याद होगा इंशाल्लाह। तो अगर हम ये रिपीट होने वाले तकरार वाले लफ्ज निकाल दें, तो असल में 78,000 में से कम होके रह जाते हैं 17,000 लफ्ज। यानी मैंने और आपने 17,000 अल्फाज सीखने हैं। वैसे 17,000 भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन नहीं, मुझे और आपको 17,000 भी नहीं सीखने पड़ेंगे। इसे और कम करते हैं। कैसे? जब हम बुनियादी ग्रामर सीख लेते हैं ना, तो बाकी पीछे लफ्ज रह जाते हैं 4,500। कैसे? अभी बताती हूँ। ये 4,500 लफ्ज हैं रूट लेटर मादा की बुनियाद पे। 1,850 रह जाते हैं भी सिर्फ। कैसे? ये देखें, औसतन एक मादा 2-3 मुख्तलिफ सूरतों में आया है। इस बात का क्या मतलब है? जैसे ये जो आपको 4,500 और 1,850 कम करके दिखाए हैं ना, ये इस तरह से हैं कि कुरान में एक लफ्ज है इल्म। इल्म आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या होता है इल्म, जानना। ये इल्म वाला जो लफ्ज है ना, कुरान में मुख्तलिफ शक्लों में आया है। जैसे इल्म, आलिम, तालीम, मुअल्लिम, ताअल्लम, अल्लम। असल बुनियादी लफ्ज एक ही है, इल्म, जानना। तो उसके जब मैनी बदल जाते हैं कि उसने सीखा, उसने सिखाया, सिखाने वाला, जानने वाला, जानता है, जानेगा, तो आपको हर बार नए सिरे से वो लफ्ज तो नहीं सीखना पड़ेगा ना। आपको उसकी बुनियाद एक ही दफा पता होगी। इल्म, इल्म का मैंने जानना। आलिमा, आलिमा का मतलब उसने जाना, उसने सीखा। तो इस तरह की चीज अगर हम मिला लें ना, तो फिर हमारे पास टास्क रह जाता है सिर्फ 1,850 का। हमें असल में 78,000 लफ्ज नहीं, 17,000 लफ्ज नहीं, 4,500 नहीं, बल्कि 1,850 बुनियादी तौर पे सीखने पड़ते हैं लफ्ज। 1,850 तो बहुत आसान नहीं है। सिर्फ 1,850 लफ्ज सीखना, 1 साल में, 1.5 साल में, हद 2 साल में मेहनत करके हम 1,850 लफ्ज सीख सकते हैं कुरान के। तो बस अभी नियत करें कि या अल्लाह, मुझे हिम्मत भी दे, मुझे तौफीक भी दे, मेरे लिए मौका भी पैदा कर, मेरे लिए समझ भी पैदा कर कि मैं ये 1,850 लफ्ज अच्छे तरीके से सीख लूं और समझ लूं। अब ये जो कोर्स है ना, आपको पढ़ाने के लिए बड़े मेहनत की गई है। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने बहुत सारी चीज़ों को पहले स्टडी किया है, बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे माहिरीन को। फिर उन्होंने सीखने और सिखाने के जो आसान तरीन तरीके होते हैं, जो आसान स्ट्रेटजी होती है, वो उन्होंने अपनाई है कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से, इशारों की मदद से, जदीद तरीके से, अपनी सारी सलाहियतें, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, रट्टा सिस्टम नहीं, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, इशारों से आसानी से कुरान के अल्फाज को सीख लें। अहम गाइडलाइंस क्या है? ये मुख्तसर तौर पे सिस्टर अनम, मैं इन स्लाइड्स की खातिर शेड्यूल मांगा करती हूँ। अभी इसमें से मैंने बहुत कुछ ना डिलीट किया हुआ है, तो शेड्यूल बहुत ज़रूरी होता है। अब ये तीसरा बैच है, तो काइंडली शेड्यूल जो है ना, वो कोर्स शुरू होने से पहले बन जाना चाहिए। बहरहाल अभी मैं आपको, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आपके क्लास हुआ करेगी हर जुम्मे को 11 से 12 बजे, 1 घंटे की इंशाल्लाह। और कुल हमने 20 क्लासेस करनी है, यानी 20 सबक पढ़ने हैं, ठीक है। हर क्लास के 2 हिस्से हुआ करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में हम कुरान का सबक पढ़ा करेंगे, पार्ट बी में हम ग्रामर का सबक पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। तो टोटल बनते हैं ये 14 सेशन।
ये 14 सेशन वाली बात आपको बाद में समझ आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक क्लास फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी क्लास का इकट्ठा होमवर्क और वर्कबुक का काम होता है। अच्छा, इसके अलावा भी एक चीज है, ये देखिए ऊपर आपके इंस्ट्रक्टर्स का ग्रुप तो बना हुआ है ना, हम जो भी चीज आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे वो आपके इंस्ट्रक्टर वाले ग्रुप में हम भेज दिया करेंगे। ये जो आप क्लास पढ़ रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और यूट्यूब पे इसका चैनल बना हुआ है। हम आपको क्लास के बाद वो लिंक भी भेज दिया करेंगे। अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आप सेंटर नहीं आई, आपने छुट्टी की हुई है, तो आप अपने घर में बाद में वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब का वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहां से वो रिकॉर्डिंग उस क्लास की ऑन करके आप सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं क्लास को। हमारा तरीकाकार क्या होगा कि आपको पहले क्लास पढ़ाई जाएगी, फिर उस क्लास की जो स्लाइड ये आपके सामने आ रही हैं वो स्लाइड्स आपके साथ शेयर किया जाया करेंगी। उस क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर किया जाया करेगा। फिर उसी हफ्ते में यानी अगली क्लास से पहले एक होमवर्क, गूगल का एक फॉर्म वो आपको आपकी इंस्ट्रक्टर्स बता देंगी, वो आपने ऑनलाइन हल किया करना है, लेकिन वो जुबानी करने की जरूरत नहीं। आप पूछ के होमवर्क जो है ना वो आप ओपन बुक होते हैं, इसलिए आप किसी से मदद भी ले सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपकी वर्कबुक का काम हुआ करेगा। वर्कबुक का काम लिखने का होता है। जो आपने क्लास में आज पढ़ा होगा उसका कुछ थोड़े बहुत सवाल जो हैं वो वर्कबुक पे आपसे लिखे हुए पूछे जाएंगे, आपने वर्कबुक पे वो लिख के जवाब देने हैं। और वो साथ साथ चेक भी हुआ करेंगी वर्कबुक्स, ठीक है। फिर ये है कि आपका मिड क्विज भी होगा और फाइनल क्विज भी होगा। इन सिस्टर अनम, ये देखें, ये स्लाइड में मैंने बहुत कुछ डिलीट किया हुआ है इसलिए कि यहाँ पे हम ये मेंशन करते हैं कि मिड क्विज कब होगा, फाइनल क्विज कब होगा। चूंकि मेरे पास शेड्यूल नहीं था तो मैं वो चीज़ें मुझे डिलीट करनी पड़ी हैं। तो जब आप 11 क्लासेस पढ़ लेंगे ना स्टूडेंट्स, 11 क्लासेस के बाद आपका होगा मिड क्विज। वो जुबानी होगा, होगा तो वो ऑनलाइन, लेकिन आपने जुबानी करना होगा, ठीक है। और जब आप 12वीं क्लास से लेके 20वीं क्लास तक पढ़ लेंगे फिर आपका होगा फाइनल क्विज, लेकिन वो फाइनल क्विज पहली क्लास से लेके 20वीं क्लास तक के 20 असबाक का होगा, ठीक है। तो मिड क्विज फाइनल क्विज बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये क्विज बड़े मुख्तलिफ तरीके से, बड़े दिलचस्प तरीके से लिया जाता है आपसे। आपने ऑनलाइन ही, वो एक फॉर्म होता है, लिखना कुछ नहीं होता, आपने बस सवालों के दुरुस्त जवाब सिलेक्ट करने होते हैं और आपके साथ साथ नंबर बनते जाते हैं। कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। इस कोर्स में हम नमाज के जरिए आपको सिखाएंगे। आपके लिए कुरान को समझना आसान भी होगा और बहुत तेज तरीका भी होगा। फिर दूसरी ये बात, हम इशारों की मदद से आपको सिखाएंगे, कुरान की बातें आपको इशारे की मदद से सिखाएंगे। और मैंने अभी कहा था ना, बच्चों की तरह सीखना है। देखिए, बच्चे को जो लफ्ज नहीं आ रहा होता ना, बोल नहीं पा रहा होता, वो उस तरफ इशारा करता है, ऐसे करते हैं ना। अगर चिड़िया उड़कर गई है, उसको चिड़िया कहना नहीं आता, तो वो आपको इशारा करेगा उस तरफ, आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे। तो इशारे भी बहुत अहम होते हैं। इवन ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम बड़े भी बात करते हुए बहुत दफा इशारे से समझाते हैं। जैसे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाने के लिए ये इशारा किया है ना। आप तो बच्चे नहीं हैं, मैं भी बच्चा नहीं हूं, लेकिन मैंने इशारा किया इस तरह से कुरान के 50% लफ्ज सीखेंगे इंशाल्लाह, सिर्फ 20 घंटे में, सिर्फ नमाज के सबक के जरिए। और ये है आपका सिलेबस। अब आप सोच रहे होंगे ये हमें कह रही हैं कि 50% लफ्ज हमने सीखने हैं, तो अल्लाह जाने ही हमें कितना ही सबक पढ़ाना शुरू कर देंगे, कितना कुछ पढ़ाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना, हमने सिर्फ नमाज का सबक सीखना है, या वो सबक जो हमें नमाज पढ़ने के लिए मदद देता है। ये देखिए, ये आपका पूरा सिलेबस है। जो हमने 20 क्लासेस में 20 घंटे लगा के जो सबक पढ़ना है ना, वो ये है। ये तर्जुमा जब हम सीख लेंगे सिर्फ इन चीजों का, तो हमें कुरान के 50% अल्फाज का मैनी पता
چل جائے گا. جیسے اذان اذان آپ کو مجھے زبانی یاد ہی ہے، ہم روز 5 دفعہ سنتے ہیں. سورۃ فاتحہ کس کو نہیں آتی؟ اس سے پہلے جو سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں، قیام میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدے میں کیا کہا جاتا ہے، التحیات میں ہم کیا کہتے ہیں، درود، درود کے بعد کی دعائیں. یہ ہے آپ کا نماز کا سبق. اس کا آپ ترجمہ سیکھیں گے. پھر آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں سیکھیں گے. ان میں سے 3 4 صورتیں تو آپ میں سے ہر کسی کو آتی ہی ہوں گی، جیسے سورۃ الاخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے. یہ تو آپ کو زبانی آتی ہوں گی. ہم ان 6 صورتوں کا، صرف 6 صورتوں کا، جو بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کا ترجمہ سیکھیں گے. اور یہ جو آپ کے سامنے 4 دعائیں لکھی ہوئی ہیں چھوٹی سی، ان کا ترجمہ سیکھیں گے. لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ بس اس سبق کا ترجمہ سیکھنے سے ہمیں قرآن کے 50% الفاظ پتہ چل جائیں گے. اب بات کرتے ہیں کورس کے مٹیریل کی. تو آپ کو آپ کا سینٹر، آپ کے سینٹر میں، آپ کی کلاس میں ٹیکسٹ بک پہنچا دے گا. ٹھیک ہے، ایک کتاب ہوگی، وہ آپ کو مل جائے گی، ہر اسٹوڈنٹ کو دی جائے گی کتاب. ورک بک ہر اسٹوڈنٹ کو ملے گی. الفاظ معنی کا کارڈ ہر اسٹوڈنٹ کو دیا جائے گا. بس یہ آپ کا اصل مٹیریل جو ہے نا یہ ہوگا. باقی جو ہینڈ آؤٹس اور ہوم ورک لکھا ہوا ہے یہ سارے آن لائن ہیں. یعنی میں جو یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ آپ کو سافٹ فارم میں گروپ میں مل جایا کرے گی. ہوم ورک آپ کو آن لائن بھیج دیا جایا کرے گا، آپ نے آن لائن اس کو حل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ تھوڑی سی شکل دیکھ لیں، کتنی کلرفل سی ہے نا، کتنی خوبصورت. یہ بڑی مزے کی کتاب ہے، پرنٹنگ بھی بڑی پیاری ہوتی ہے اس کی. یہ کتاب ہے، یہ ورک بک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو دی جائے گی کلاس میں. اور سارے الفاظ معانی لکھے ہوتے ہیں جو آپ کلاسز میں پڑھتے ہیں. تو اس کو اپنے ساتھ آپ نے ہر وقت رکھنا ہے، یہ ہر اسٹوڈنٹ کو دیا جائے گا. یہ اضافی ہے، اگر آپ میں سے کوئی یہ والا پارا لینا چاہے قرآن کو سمجھنے کے لیے تو لے لے، ویسے یہ ضروری نہیں ہے اور اسے ہم کلاس میں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اور یہ کچھ ہدایات ہے، اگر آپ کو کورس مٹیریل کے لیے کوئی معلومات، ہدایات چاہیے تو وہ آپ نے مشتبہ بھائی سے یا سسٹر انم سے یا اپنی انسٹرکٹر سے بات کرنی ہے، وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. پھر ہوگا کیا، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ نے ہوم ورک کیا کرنا ہے. ہوم ورک کے پورے کورس میں نا 15% نمبر ہوں گے. ورک بک کے بھی 15% نمبر ہوں گے. 11 کلاسز کے بعد جو مڈ کوئز لینا ہے اس کے 30% نمبر ہوں گے. اور آخر پہ جو آپ کا فائنل کوئز ہوگا 20 اسباق کا، اس کے ہوں گے 40% نمبر. ان کو ٹوٹل کریں نا تو 100 بن جاتا ہے. یعنی آپ کے ٹوٹل نمبر ہوا کریں گے 100. اس میں سے آپ نے جتنے حاصل کیے تو اس کے حساب سے کیا ہے کہ جن لوگوں کے 90% سے زیادہ نمبر آئیں گے ان کو ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ ملے گا. یعنی آپ کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. پھر سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہوگا، یعنی اگر کسی کے 70 سے 89% نمبر آتے ہیں تو اس کو میرٹ کا سرٹیفکیٹ ملے گا. جو 50% سے لے کے 69% تک کے نمبر حاصل کریں گے لیکن ان کی حاضری جو ہے 70% تک ہونی چاہیے، تو پھر ان کو کورس مکمل کرنے کا سرٹیفکیٹ ملے گا. اس طرح پارٹیسپیٹ کرنے کا بھی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو یہ آپ کو آپ کے سینٹر، کاوش سینٹر جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. یہ ذرا ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیں. یہ آپ کے سرٹیفکیٹ کی شکل ہے جو اسلام آباد سے بن کے آتا ہے آپ کے لیے. تو آپ اللہ سے دعا کریں، یہ جو ہے نا یہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ہے. یہ جن لوگوں کے 90% سے زیادہ نمبر آتے ہیں، 90% یا اس سے زیادہ، تو آپ دعا کریں کہ آپ کو یہی والا سرٹیفکیٹ ملے، ایکسیلنس والا انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے. کرنے والے کیا کام ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. ہوم ورک ہے، آپ نے ہفتے میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے. ورک بک کا کام ہفتے میں صرف ایک دفعہ. ہاں، قرآن کی تلاوت کا کام ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں آپ نے 5 منٹ کرنی ہے، روز کرنی ہے. کچھ بھی تلاوت کریں لیکن روز کریں. اچھا، ابھی میرے پاس صرف 10 منٹ بچ گئے ہیں. اس 10 منٹ میں آپ کو میں تھوڑا سا، یہ چونکہ انٹروڈکشن کی کلاس تھی تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتی ہوں کہ ہم کیسے پڑھا کریں گے، کیسے سیکھیں گے. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حساب اور نماز کے ذریعے. سبق نمبر 1 جب ہم پڑھ لیں گے تو اس کے آخر تک آپ سیکھیں گے 12 لفظ. لیکن یہ 12 لفظ آپ نے سیکھنے 12 ہیں
मगर वो कुरान में 7,248 दफा आए हैं। तो कितना फायदा है कि आज 1 घंटे की क्लास में आप 12 लफ्ज सीखें और सारी उम्र के लिए कुरान के 7,248 अल्फाज के मैनी समझ लें। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आप अल्फाज मैनी की बैटरी को ये 50,000, 40,000, 41,000 से के करीब ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो कोर्स के मकासद यही हैं कि कुरान समझना आसान, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं और आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? सर्टिफिकेट लेने के लिए, या बस 11 से 12 वाला घंटा किसी तरह गुजारना है? हमने सेंटर में आ गए हैं तो अब अगर आप कोर्स कर ही रहे हैं तो अपनी नीयत को, अपने मकसद को ना नेक बनाएं, और इस तरह से कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह को राजी करने के लिए हम कुरान को समझते हैं, कुरान हमारे लिए समझना आसान हो जाए। जो हम नमाज पढ़ते हैं हमें वो नमाज समझ में आए, और हमारी नमाज जो है वो मुअस्सर हो, असर वाली हो। जैसे सहाबा पे, नेक लोगों पे नमाज पढ़ते हुए कैसा असर होता था, वो असर हमारी भी नमाज में हो, खुशबू खुशबू पैदा हो। इस कोर्स का चौथा मकसद ये है कि मेरा और आपका ताल्लुक भी बने कुरान से। ये नहीं कि हम सिर्फ इसको सवाब लेने के लिए पढ़ते रहें और सवाब ही हासिल करते रहें। ये कुरान हमारी जिंदगी में कहाँ पे है, कैसे हमने इसके मुताबिक अमल करना है, सहाबा की जिंदगियां किस तरह बदल जाती थी कुरान पढ़ने से, तो वो ताल्लुक हमने भी बनाना है कुरान के साथ। और फिर नेक अमाल सीखने हैं जो कुरान में हमें बताए गए हैं कि नेक अमाल क्या है। वरना तो मैं और आप देखें, जोहर की नमाज है तो हम अगर वो 10 दफा पढ़ लें, नेक अमल है, लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा 10 दफा पढ़ने को, है ना? नेक अमल क्या है? वो जो हमें अल्लाह के रसूल की सुन्नत से मिलता है, कुरान और सुन्नत से हमें जो चीज मिलती है वो नेक अमल है। हम वो नेक अमाल समझने के लिए कुरान को समझना चाहते हैं। और एक छठा मकसद ये है कि अरबी बोलचाल बुनियादी जो है वो हम सीख लें, हमें छोटे छोटे जुमले बोलने आ जाएं अरबी के, ताकि हमें कुरान को मजीद समझने में और कुरान के मुतालिक बात करने में आसानी हो। तो पहला सबक जो होता है उसमें हम आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी इसे ताबुज कहा जाता है, इसका तर्जुमा सीखते हैं, और कुछ ग्रामर के नए लफ्ज हैं छोटे छोटे, हुआ, हुम, अंताना, ये टोटल मिला के 12 लफ्ज होंगे, नए हैं। आपने इनके मैनी सीखने हैं जो कुरान में 7,248 दफा हैं। तो हम शुरू करते हैं तावुज से। ये जो आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है ना, इसे क्या कहते हैं? तावुज। अच्छा, अब वैसे शोर नहीं करना, गैर जरूरी शोर नहीं आना चाहिए, लेकिन अब अपने सारे सारे आप लोग ना अपने माइक ऑन कर लें। अब आपको शामिल होना पड़ेगा क्लास। अच्छा, कुरान शुरू करने से पहले हमको आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लाजमी पढ़नी चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है? तो हम सबसे पहले इसी का तर्जुमा सीखते हैं, ठीक है? मैं अब आपको बताती हूँ आऊदु इसका मतलब क्या होता है। आऊदु, मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ, ठीक है? मैं पनाह में आती हूँ, याद हो जाएगा ना, आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। आऊदु, सारे बोले आऊदु, मैं पनाह में आती हूँ। मैं पनाह में आती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, पनाह क्या है? पनाह है हिफाजत, किससे? शैतान से बचने के लिए। हमें सबसे पहले अपनी हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम दी गई है कि आपने जब गाड़ी में बैठती हैं बेल्ट बांध लेती हैं ना, कि खुदा ना खास्ता झटका आए तो चोट ना लगे। तो हमने कुरान पढ़ने से पहले ना, कुरान पढ़े ना, तो शैतान बहुत ज्यादा हमले करता है। हमने शैतान के शर से बचने के लिए खुद को महफूज करना है। कैसे? बेल्ट बांधनी है। बेल्ट कौन सी है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है, तो इंशाल्लाह शैतान से महफूज हो जाएंगे। अगला लफ्ज है बिल्लाही। अब मजे की बात है, ये गौर से देखिए, यहाँ पे बिल्लाही कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। असल में ना ये दो लफ्ज हैं, इनके टुकड़े करें तो ये अलग बनता है और ये अलग बनता है। बी का मतलब अलग है, अल्लाह ही, अल्लाह का मतलब अलग है। तो अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अल्लाह की हिफाजत में आता हूँ, ठीक है? बिल्लाही, ये देखिए बी का मतलब है की या से, या कभी इसका मतलब के साथ भी होता है, अल्लाह ही अल्लाह, ठीक है? अल्लाह की।
मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। अल्लाह का मतलब अल्लाह, भी का मतलब की। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। ठीक है। अरबी में के एक लफ्ज में दो या कभी तीन अल्फाज भी मौजूद होते हैं, यानी अल्फाज के आप टुकड़े कर सकते हैं और उनके अलग अलग मतलब होते हैं। दो तीन लफ्ज मिलकर एक पूरा लफ्ज बना रहे होते हैं। अब अगला लफ्ज जो है मिन शैतान, मिन का मतलब है से। क्या मतलब है मिन का? से। ठीक है। इसके और भी मैनी होते हैं, वो बाद में हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मिन का मतलब है से। ठीक है। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की से। किस से? अशैतान, ये शैतान से। ठीक है। शैतान का लफ्ज तो हम उर्दू में भी बोलते हैं, पंजाबी में भी ऐसे ही बोला जाता है, सराइकी में भी इसी तरह बोला जाता है। शैतान शैतान ही है। ठीक है। तो शैतान वाहिद होता है, ये देखें एक, और इसकी जमा होती है, चलिए अभी जमा नहीं करते। ठीक है। शैतान एक लफ्ज है, आम शैतान, कोई भी शैतान, और अल इसके साथ लग जाते हैं ना तो सारे शैतान या कोई खास किस्म का शैतान, तो सारी जिन्स यानी हर शैतान। आप जब ये आऊज़ु बिल्ला पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की पनाह में आते हैं हर शैतान से बचने के लिए। अशैतान में हर शैतान मौजूद होता है, अल लग जाता है ना तो इसका मतलब होता है सब, सारे के सारे। अशैतान शैतान से। ठीक है। और ये है शैतान वाहिद है, और शयातीन इसकी जमा है। शैतान वाहिद है, शयातीन इसकी जमा है। ठीक है। शैतान शयातीन, तो वाहिद जमा भी आपने याद रखनी है। अगला लफ्ज है अर्रजीम। अर्रजीम भी दो टुकड़े हो सकते हैं। कैसे? वैसे टुकड़े तो नहीं है, ये लफ्ज एक ही है, मगर आप यूं समझ लें कि रजीम सीधा एक आम रजीम अल के बगैर भी लिखा जा सकता है। उसका मतलब होता है कोई भी जो मरदूद किया हुआ हो, रद्द किया हुआ हो। लेकिन अर्रजीम का मतलब होता है कोई खास। तो ये शैतान जो थे ना, इनको मरदूद कर दिया था ना, अल्लाह ने रद्द कर दिया था, लानत भेज दी थी इन पे, तो इसलिए ये मरदूद हैं, धुतकारे हुए हैं। तो यहाँ पे और रजीम वो जो मरदूद है, धुतकारा हुआ है। अब रजीम का मैंने आपने याद कैसे रखना है? ऐसे रजम का मैं ये देखिए, आउजू आपको पता है किसी न तरीके से, बिल्लाही मिनश शैतान, ये अल्फाज के मैंने याद करना सीखना आसान है। जो रजीम लफ्ज है ना आपके लिए नया है। इसका मैंने याद करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जहन में ये रखें कि शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? बताएं। नहीं है ना, वो तो मरदूद है, उसे तो धुतकारा था। तो इसलिए रजीम के मैनी है धुतकारा हुआ, मरदूद। तो यहाँ पे पूरा तर्जुमा बनेगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। फिर आप इस बात को अपने तसव्वुर में, एहसास में लेके आए। ये जो स्लाइड आपको हम हर क्लास में दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, इस स्लाइड का मतलब होता है जो अभी आपने सीखा है तर्जुमा, उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। यानी आप तसव्वुर करें, महसूस करें कि शैतान कौन है, कितना बड़ा दुश्मन है हमारा, और हर वक्त हम पे हमले करने की कोशिश करता है। तो हमने अपने आप को गैर महसूस पहले महसूस करना है, महफूज, और फिर शैतान के हमलों में घिरा हुआ महसूस करना है। फिर हमने अल्लाह से दुआ करनी है कि हमें इससे बचाए। शैतान आप यूं समझ लें कि देखें अल्लाह ताला जो हैं वो सातवें आसमान पे हैं, ऊपर अर्श पे हैं, हमारे फिर भी बहुत करीब हैं। मैं आप बोल रही हूँ, मेरे अल्लाह को पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अल्लाह अर्श पे हैं, लेकिन अल्लाह को पता है मैं क्या कर रही हूँ। आप कहाँ मुझसे सैकड़ों मील दूर आप बैठी हुई हैं, लेकिन मुझे भी और आपको भी, जब हम बोलते हैं, ये सबक सीख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें सुनकर जवाब देते हैं। इसलिए आपने भीख के अंदाज में अल्लाह से हिफाजत मांगनी है। क्या दुआ मांगनी है? ये आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। और ये एहतसाब करें, अपना हिसाब लें। आज दिन में कितनी दफा ऐसे हुआ कि शैतान के फंदे में मैं आई हूँ, और क्यों आई हूँ? हो सकता है खराब दोस्तों की वजह से आई हूँ, हो सकता है मोबाइल और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से आई हूँ। ये मैंने और आपने चेक करना है जब जब हमने आऊज़ बिल्लाह पढ़नी है। फिर प्लान बनाएं
कि अच्छा अगर मैं गलत दोस्तों की वजह से गलतियां कर रही हूँ तो मैंने गलत दोस्तों को छोड़ना है, सही दोस्तों को अपनाने का प्लान बनाएं, बुरी चीजों को दूर करने का प्लान बनाएं, वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करने का प्लान बनाएं। और आखिर पे एक नुक्ता है तबलीग का, कि ये आपने सीख लिया, आपने समझ लिया, आपने उसके लिए प्लान बना लिया, अब आप उसकी तबलीग करें, लोगों को पहुंचाएं, शैतान के हमलों के बारे में दूसरों को भी बताएं। इस तरह तसव्वुर और दुआ और एहसास के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है आज घर में जाके, सिर्फ इतने से सबक की, आऊदु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, और रजीम, जो मरदूद है। अब एक दफा आप सब दोहराएंगे जो लिखा हुआ है, अरबी भी और तर्जुमा भी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मैं पनाह में आता हूँ आगे है ग्रामर। ठीक, सही पढ़ा, गलत पढ़ा। सही अंता, अना, अंतुम, नाहनु और पढ़ा मन। तो नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये लफ्ज नए हैं, लेकिन कितने छोटे छोटे। मुझे आता है। अंता, अना, अंतुम, नाहनु। मजे की बात है, अभी रात को मैं अपनी भतीजी को ये सिखा रही थी और वो इशारों से बोल रही थी और बड़ी लहक लहक के ये सबक मुझे सुना रही थी। तो उसको भी ये आता है, तो आप तो यकीनन बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो अब हम जरा ग्रामर वाली मैं स्लाइड खोल लूं। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है, नमाज के जरिए हम कर रहे हैं। इसमें हमने ग्रामर का काम करना है, ग्रामर का सबक पढ़ना है। और इसमें ये छोटे छोटे से लफ्ज हैं जिनका आज आपको मैं बहुत मुख्तसर सा तारुफ दूंगी। अगली क्लास में फिर जरा दोबारा थोड़ी सी तफसील से देख लेंगे इसको। ग्रामर को सीखना बहुत आसान है। हम ग्रामर, अरबी ग्रामर का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे ग्रामर में ये बहुत सारी इस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। हमने इस तरह से नहीं सीखनी, ठीक है। फेले मुजारे मरफू बेसबूतुन नून, और ये ज़मीर मुत्तसिल फी महल्ले रफा, ये जो लफ्ज अगर मैंने आपको बताए और सिखाए पहले दिन ही, तो हर इंसान जो है मैथ्स में डर सकता है ना, अरबी का डर दिल में बैठ जाएगा कि ये तो बहुत मुश्किल जुबान है। हमने ऐसे सीखनी नहीं, और ना ही हमने ऐसे जुमले सीखने हैं जो आम जुबान में आम तौर पे इस्तेमाल होते ही नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है। हमने अभी ऐसे नहीं सीखना। हम ग्रामर सीखेंगे टीपीआई के साथ, ठीक है। टीपीआई क्या होती है? ये आसान होती है, दिलचस्प होती है, और असल में ये होती क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल, सारी की सारी, कुल, फिजिकल, जिस्मानी तौर पे सारे माहौल को शामिल करके, इंटरेक्शन, आपस में मिलजुल कर, यानी सारा माहौल और हमारी सारी बॉडी मिलकर इशारों के जरिए ग्रामर के अल्फाज दोहराती है, सीखती है, और इस तरह ये करते हैं। टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टीपीआई होती क्या है? यानी सारे वजूद का इस्तेमाल, और वो क्या है? इसमें इस्तेमाल होता है आपका कान। अभी आप कर रहे हैं ना, आप कानों से सुन रहे हैं ना मुझे? अच्छा। आंख, आप मुझे आंखों से देख भी रहे हैं अगर मैं स्क्रीन पे नजर आ रही हूँ आपको, ठीक। दिमाग, अब दिमाग, जो मैं बोल रही हूँ आपका दिमाग उसे प्रोसेस करता है, गौर करते हैं, ठीक है। फिर आप आवाज में बोलते हैं। अभी मैंने आपसे कहा ना आप दोहराएं, तो आपने दोहराया ना, तो यानी आपने आवाज का भी इस्तेमाल किया। और इसी तरह फिर है हाथ। मैं अभी आपको हाथ के इशारों से भी बताऊंगी, आप भी हाथ के इशारे इस्तेमाल करेंगे। दिल, दिल के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। दिल की पूरे ध्यान के साथ आप इसको सीख रहे हैं। तो ये ग्रामर सीखने में बड़ी मदद देता है जब हम तवज्जो और गौर के साथ शामिल हो जाते हैं सीखने में। और साथियों का, साथी क्या? आपका माहौल, आप सारी मिलकर एक चीज को सीखेंगी। अभी मैं आपको एक लफ्ज सिखाऊंगी, हुआ, उसका मैनी, अगर किसी एक को भूल जाता है दूसरी साथी उसको बता देगी, तीसरी उसको इशारा बता देगी, इसका इशारा ये था, चौथी उसको मैनी बता देगी, इसका मैनी ये था। आपने ये सब कुछ मिलजुल कर करना है। इसी को हम टोटल फिजिकल इंटरेक्शन कहते हैं। ये कोई मुश्किल या बड़ी अनोखी चीज नहीं है। कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और साथियों
के जरिए सुनिए, देखिए, सोचिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए यानी कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ये 7 चीजें हैं जो मिलकर टीपीई करती हैं और हम ग्रामर सीखते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, पूरा एक सिस्टम है। इस प्रैक्टिस के जरिए बहुत से लफ्ज आसानी से सीख लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एक बात समझाते हुए इशारा किया था ना, तो मैंने आपको ये समझाना चाहा था कि इशारे करना हमारी फितरत में शामिल है। हम हाथ से इशारात करते हैं, किसी को रास्ता समझाने के लिए इशारे करते हैं, तो इशारों से बात को ज्यादा जल्दी समझा जा सकता है। ये सादा तरीका होता है, मौसर तरीका होता है अरबी जुबान के सिगों के लिए। सिगे आप बाद में समझ लेंगे सिगा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक ऐसा लफ्ज है ना, हुआ, तो आपको अभी मैं समझाऊंगी इसका क्या मतलब है। ये इशारा जो है ना आसानी के लिए होता है और सारा दिमाग इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने बीच में शैतान को नहीं आने देना, क्योंकि शैतान मुझे और आपको सीखने नहीं देगा। अभी ये है आपका आज का सबक। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, 6 लफ्ज हैं। अभी ये 6 लफ्ज हैं। आप यकीन करें, ये 6 लफ्ज सीख लेंगे ना तो कुरान के 1295 लफ्ज आप सीख लेंगे, क्योंकि ये 6 लफ्ज कुरान में 1295 दफा आए हैं। सिर्फ 6 लफ्ज सीखना तो आसान है ना। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, दायां हाथ इस्तेमाल करूंगी मुजक्कर के लिए, और इसका मतलब अगर एक उंगली इस्तेमाल करूंगी तो वाहिद, अगर ज्यादा उंगलियां इस्तेमाल करूंगी तो जमा। ठीक है, और अगर ऐसे इस्तेमाल करूंगी ना तो वो होगा जो यहाँ मौजूद नहीं है। अगर ऐसे करूंगी तो जो सामने है, अगर यूं करूंगी तो जो खुद मैं हूं, जो मौजूद हैं, अगर यूं करूंगी तो जो सब मौजूद हैं सामने हैं, और यूं करूंगी तो जो सब मौजूद हैं लेकिन हम में शामिल हैं। तो ऐसे देखिए, हुआ, हुआ का मतलब होता है वो। ये उंगली का इशारा भी देखिए, मैं एक उंगली से कर रही हूँ। हुआ, वो, यानी वो मर्द, वो लड़का, वो बच्चा जो यहाँ पे सामने मौजूद नहीं है। हुआ, वो, हम, वो सब। ठीक है, हम, वो सब, हम, वो सब, हुआ, वो, हम, वो सब। अंता, आप, अंता, आप। अच्छा, अगला लफ्ज है अना, यानी मैं। अब जरा सोच के आप बताएं कि मैंने अंता के लिए, आप एक के लिए ये इशारा किया था, तो अना के लिए मुझे इशारा कैसे करना चाहिए? ज्यादा उंगलियों से या एक उंगली से? एक उंगली से। वेरी गुड, एक उंगली से। यहाँ पे इशारा करूंगी, क्या करूंगी? अपनी तरफ। अपनी तरफ। वेरी गुड। अब देखें, ये मैंने तो नहीं आपको बताया, आपने खुद जज कर लिया ना। ये कमाल होता है टीपीआई का, कि ये बहुत जल्दी सिखाती है। अंता, आप, अना, मैं। अब यही आपको अगर मैंने ज्यादा करना है तो मैं ज्यादा उंगलियों से कहूंगी अंतुम, आप सब, अंतुम, आप सब। अगर मैंने ज्यादा लोगों के लिए अपनी तरफ इशारा करना है तो क्या करूंगी? अंतुम, आप ऐसे कर लूंगी ना, हाथ को ऐसे कर लूंगी, तो ये हो जाएगा नाहनु, हम सब। मैं आपकी तरफ इशारा कर रही हूँ ना, आप सब जो मौजूद हैं। आप हैं अंतुम, आप सब। और जो आप वहां बैठे हुए हैं, आप अपनी तरफ इशारा करके क्या कहेंगे कि नहनु हम सब, नाहनु, हम सब। बस सीख लिया ना, आसान है। मैंने भी याद हो गया, अरबी भी याद हो गई, इशारा भी याद हो गया। मुबारक हो, आपने कुरान के 1295 लफ्ज सीख लिए इतनी सी 1.5 मिनट में। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। एक और नया लफ्ज सीख ली, मन। मन का मतलब होता है कौन। मन का मतलब होता है कौन। मन का मतलब है कौन, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं मन हुआ, वो कौन है? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुम, वो सब कौन है? हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। मन अंता, आप कौन हैं?
अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन, अंतुम, आप सब कौन हैं? नहनु मुस्लिमून। नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। आसान हो गया ना। मन का मैंने भी आपने सीख लिया। हुआ, हम, अंता, अना, और नाहनु का भी मैंने आपने सीख लिया है। अंतुम, नाहनु का मैंने भी आपने सीख लिया है। तो इसका मतलब है इतनी सी देर में आप ये अरबी जुमलों का तर्जुमा भी कर सकते हैं कि आप मैं मुसलमान हूँ। दिलचस्प पर भी है। कुछ और मन की तरह कुछ और लफ्ज भी सीख ले। मन का मतलब कौन, वा का मतलब होता है और, फा का मतलब होता है बस, आ का मतलब होता है क्या। ये चीजें मैं दोहराऊंगी अगली क्लास में, फिर दोहराऊंगी। वा और फा, बस, आ, क्या। तो इसमें बार बार आने वाले बाज अल्फाज ऐसे हैं जो सिर्फ एक हर्फ में आ जाते हैं, जैसे कि वा, फा, आ। तो ये इस तरह से आसान है। सामने के हर्फ को अलग करें। वाह, हुआ, ये दो लफ्ज मिलाकर बना हुआ है। इनके टुकड़े करें तो वाह अलग है और हुआ अलग है। इसी तरह वाहुम, आपको कुरान में ये इकट्ठा लिखा हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके टुकड़े इस तरह से कर सकते हैं। वाह अलग लफ्ज है, हुम अलग लफ्ज है। वाह का मतलब है और, हुआ का मतलब है वो। वाह का मतलब है और, हुम का मतलब है वो सब, यानी और वो सब इसका मैनी बनेगा। तो ये टेबल, वो जो अभी आपने सीखा ना, हुम, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये इस तरह से भी बन सकते हैं। वाह हुआ और वो, वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। आप जरा मेरे साथ मिलके एक दफा फिर करें यही वाला टेबल। वाह हुआ और वो और वो सब, अंता और आप सब, व नहनु और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। बस यही है जिसके बारे में अभी आपने क्लास में सुन लिया। बाद में आपसे होमवर्क में इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी और आपको वर्कबुक पे भी यही कुछ लिखना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम वा की जगह फा लगा दें, फा का मतलब होता है बस या तो, ठीक है, या फिर, तो फाहुवा, फहुम, पूरा टेबल बन जाएगा। फाहुवा, बस वो, फहुम, बस वो सब, फअंता, बस आप, फअना, बस मैं, फअंतुम, बस आप सब, फनहनु, बस हम सब। आसान है ना। फा और हुआ को जोड़ दिया तो नया नया टेबल बन गया, नए नए मैनी आ गए। अब आप सब मेरे साथ मिलकर एक दफा करें इसे। वेरी गुड। तो ये देखें जी, मुबारक हो, आपने जो नए लफ्ज सीखे हैं, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, सिर्फ 6 ये वाले लफ्ज थे। ये कुरान में, ये जो सामने डिजिट्स लिखे हुए ना, ये कुरान में ये लफ्ज इतनी दफा आए हैं। अब जहां जहां कुरान में आपको हुआ लिखा नजर आएगा, हुम लिखा नजर आएगा, अंता या अना लिखा हुआ देखेंगी, अंतुम या नाहनु लिखा हुआ देखेंगी, आपको पता होगा कि इसका मैनी क्या है। तो ये फायदा है इस कोर्स का कि आपने 1 घंटे की क्लास में चंद नए 12 नए लफ्ज सीख कर कुरान के 7,248 अल्फाज का मैंने सीख लिया। आखिरी चीज है नुक्ता तालीम, और वो है आप सीख सकते हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप अगर इस क्लास में, इस सेंटर में बैठी हुई है ना, तो इसका मतलब है आपके पास दिमाग है। जिसके पास दिमाग नहीं है, जो जहनी तौर पे पागल है, वो तो क्लास में नहीं बैठा होगा ना। तो अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, ताकतवर दिमाग दिया है। कितना ताकतवर है ये देखिए। आपके दिमाग के इतने खलिए हैं। एक खलिया होता है, उसकी 20,000 शाखें होती हैं, और अकेले एक हमारे ये जो दिमाग है ना, जो खोपड़ी, इसी के अंदर 100 बिलियन खलिए हैं, 100 बिलियन जर्रे हैं जिनसे मिलकर ये दिमाग बना हुआ है। और हर जर्रे की 20,000 शाखें हैं। और उनमें से वो क्या है, हर 1 सेकंड में हमारा वो एक खलिया जो है 500 दफा काम करता है। तो सीखने के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश है। ये जो दिमाग हमारे पास है, कुव्वत है, मेरे पास है, आपके पास है। इसलिए आपने ये कभी ये नहीं सोचना, कभी ये नहीं कहना कि मैं नहीं सीख सकता, अब तो उम्र नहीं है, या मैंने पहले पढ़ा नहीं हुआ, मैं कैसे सीखूंगा। नहीं, आपके लिए सीखना आसान है, क्योंकि आपके पास अल्लाह का दिया हुआ इतना ताकतवर दिमाग मौजूद है। तो इस दिमाग की कदर करें,
और सीखें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास ख़त्म हुई, हमने सबक नंबर 1 मुकम्मल कर लिया। आज हमने इस सबक में सिर्फ 12 लफ्ज़ सीखे हैं, मगर ये 12 लफ्ज़ कुरान में 7248 दफ़ा आए हैं। कितना फ़ायदा है ना। तो अब जब भी ये 12 लफ्ज़ आप कुरान में कहीं देखेंगे, आपको उनका मैनी याद होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसने आपको ये कोर्स ज्वाइन करने की, ये सबक समझने की और सीखने की तौफीक दी। जो सीखा है इसे दूसरों तक पहुंचाएं। और ये 7 होमवर्क हैं जो मैं आपको हर क्लास में दिखाऊंगी। आपने ये हर क्लास में ये स्लाइड देखनी है और ये 7 होमवर्क करने हैं। टीचर बने कैसे, जो आपने सीखा है इसे दूसरों तक सिखा दें। और अगर बाकायदा टीचर बनना है तो भी ये बहुत आसान है। हम टीचर बनने के लिए आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, इंशाल्लाह तो आप भी टीचर बनेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फिर यार क्यों करते हो? बस और क्लास में नहीं आती है। मेरी बात हो गई। इसको ऑफ कर दे। नहीं यार थोड़ा हाँ जी, आपको मेरी, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes. चले